مولانا علی مینگل کے بیان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن کو آن کریں۔ نحمد و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، او کما قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ وعترتہ بعدد کل معلوم لک۔ میرے محترم سامعین اور میرے عزیز دوستوں بزرگوں، پاکستان کے حالات آپ کے سامنے ہیں۔ انڈیا نے مقبوضہ کشمیر کے اندر ایک جھوٹا ڈرامہ رچایا اور اس جھوٹے ڈرامے کی وجہ سے پاکستان کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی، دھمکانے کی کوشش کی اور اپنی فوجی تیاریاں اور اپنا اسلحہ ہتھیار ان کی نمائش کر کے پاکستانیوں کو ڈرانے کی کوشش کی، مگر الحمدللہ آپ شہروں میں گھومیں، کسی آدمی سے ملیں، پورے پاکستان کے اندر کوئی آدمی ہندوستان کی دھمکیوں کی وجہ سے پریشان نہیں ہے۔ الحمدللہ ہم سب اپنے گھروں میں آرام سے سو بھی رہے ہیں، تجارت بھی کر رہے ہیں، اپنے ملک میں آرام سے گھوم رہے ہیں، کوئی خوف نہیں ہے ہمارے اوپر، کوئی ہمارے اوپر پریشانی نہیں ہے۔ اس سے پہلے میں ایک بات آپ لوگوں کو عرض کروں، اسلام کے اندر، شریعت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع فرمایا کہ تم اس چیز کی تمنا کرو کہ دشمن سے ہمارا مقابلہ ہو جائے یا دشمن ہم پر حملہ آور ہو، ہم ان سے مقابلہ کریں۔ تو شریعت کے اندر اس چیز سے منع ہے کہ دشمن سے ہمارا مقابلہ ہو جائے یا دشمن ہمارے اوپر حملہ آور ہو، اس چیز کی تمنا مت کرو۔ ہاں، اگر دشمن ہمارے اوپر چڑھائی کرتا ہے، ہمیں دھمکاتا ہے، ہمیں ڈراتا ہے، تو پھر اسلام کا حکم یہی ہے، شریعت کا تقاضا یہی ہے، پھر تم صابر بھی رہو، صابر بھی بن جاؤ اور ثابت قدم بھی رہو۔ الحمدللہ آج پوری پاکستان قوم کی یہی حالت ہے۔ الحمدللہ دشمن کی دھمکیوں نے نہ ہمیں ڈرایا، نہ ہمیں جھکایا، نہ ہم خوفزدہ ہیں، بلکہ اللہ پاک سے ہم دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں دشمن کے مقابلے میں استقامت عطا فرما اور ہمیں صبر عطا فرما۔ پہلی بات، آج ہمیں پریشانی نہیں ہے دشمن کی دھمکیوں کی وجہ سے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ، سب سے بڑی وجہ اس کی یہ کہ ہمارے اوپر اللہ پاک کی رحمت ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے دلوں میں دشمن کا خوف پیدا نہیں کیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہمت دی ہے، تمام پاکستانیوں کو ہمت دی ہے کہ ہم اپنے دشمن سے آنکھوں میں آنکھیں ملا کر بات کر رہے ہیں اور کریں گے بھی انشاءاللہ تعالیٰ۔ پہلی بات تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے۔ دوسری بات، آج
अगर हम अपने घरों में आराम से सो रहे हैं, तिजारत भी कर रहे हैं, इन हालात के अंदर दुश्मन हमारे बॉर्डरों के करीब पहुंच चुका है, वो हमें धमकियां देता है, मिसाइल बरसाने की धमकियां देता है, मगर हमें कोई खौफ नहीं है, हमें कोई डर नहीं है। इसकी वजह दूसरी वजह यही है कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये काम मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान रहमतुल्लाह अलैह ने जो हमारे लिए मेहनत की, और उन्होंने हमारे मुल्क अजीम मुल्क पाकिस्तान को एटमी धमाका करके हमें एक ताकत दी। ये उनकी एक बड़ी हमारे ऊपर मेहरबानी है कि उन्होंने हमारे लिए मेहनत की। तो मेरे भाइयों, हमारा हक बनता है कि आज हम आराम से सो रहे हैं, हमारे बच्चे घरों में आराम से सो रहे हैं, और हमें दुश्मन का कोई खौफ नहीं है। दुश्मन के दिलों में हमारा रौब है और उनके दिलों में डर है। तो मेरे भाइयों, आज हर मुसलमान पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कि वो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान रहमतुल्लाह अलैह के लिए दुआ करे, उनके लिए दुआ करे, हर नमाज के बाद उनके लिए दुआ करे। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करे कि या अल्लाह डॉक्टर अब्दुल कदीर खान रहमतुल्लाह अलैह उनकी कब्र को जन्नत के बागों में से बाग बना दे। या अल्लाह उनकी कब्रों पर, अल्लाह उनकी कब्र पर करोड़ों रहमतें नाजिल फरमा। या अल्लाह उनके वालिदैन के ऊपर करोड़ों रहमतें नाजिल फरमा। अल्लाह तो उनकी कब्र में जन्नत की खुशबू पहुंचा दे। ये हमारी तमन्ना है, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है। और तीसरी बात जो हम सब की जिम्मेदारी है, जो वो हमारे पाकिस्तानी फौजी सिपाही या आला अफसर हैं, हम आराम से सो रहे हैं, वो अपने घरों को छोड़कर, यार उनके भी बच्चे हैं जो हमारी हिफाजत कर रहे हैं, बॉर्डर पर दुश्मन की आंखों में आंखें मिला रहे हैं और दुश्मन को जवाब दे रहे हैं, उनके भी वालिदैन हैं, मगर उन्होंने अपने घरों को छोड़ा। उन्होंने हमारे लिए अपने वालिदैन को छोड़कर, अपने घरों को छोड़कर, अपने बच्चों को छोड़कर, अपनी बीवियों को छोड़कर वो बॉर्डर पर खड़े होकर दुश्मन की आंखों में आंखें मिलाकर उनको जवाब दे रहे। हम सब की जिम्मेदारी है हम उनके लिए दुआ करें। और उसके बाद ये हम सब की जिम्मेदारी है कि हम जिस तरह हमारी फौज बॉर्डर पर मौजूद है, दुश्मन से हमारी हिफाजत कर रही है, तो हम उनके लिए दुआ भी करें। और एक बात ये भी है कि हम जो हमारे दुश्मन है, जो अंदरूनी दुश्मन है, दुश्मन हमारे अंदर आकर हम पर हमला कर सकता है, हमारी मसाजिद पर हमला कर सकता है, हमारे मदारिस पर हमला कर सकता है, हमारे बाज़ारों पर, हमारे मुसाफिर जो स्टेशन वगैरह हैं उन पर हमला कर सकता है। ये हम सब की जिम्मेदारी है। हम हर मशकूक आदमी पर निगाह करें, नज़र दौड़ाएं। अगर कोई मशकूक आदमी हमें नज़र आ जाए इन हालात के अंदर, तो हम अपने दिफाई इदारों को और हम अपने मुल्क के इदारों को ज़रूर इससे तंबीह कर लें और उनको ज़रूर बताएं। आजकल बाज़ हमारे नादान भाई, बाज़ नादान लोग हमारे फ़ौज के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं। हाँ, उनसे आपको इख्तिलाफ हो सकता है, मगर अभी इख्तिलाफ का वक़्त नहीं है। अभी ये वक़्त है हम अपने इख्तिलाफ़ात को छोड़ें, हम एक मुट्ठी बन के अपने दुश्मन को मुक्का दिखाएं कि हमारे फ़ौज से हमारी कोई इख्तिलाफ नहीं है। वो हमारे भाई हैं, वो हमारे बड़े हैं, वो हमारे बड़े हैं, हमारे सिपाही हैं, और हम उनके लिए दुआगो हैं। तो मेरे भाइयों, ये हम सब की जिम्मेदारी है। एक तो हमारे ऊपर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये रहमत है, हमें दुश्मन का कोई खौफ नहीं है। दूसरी बात, हम अपने मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान रहमतुल्लाह अलैह के लिए हर वक्त दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला उनकी कब्र पर करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाए। अल्लाह पाक उनकी कब्र को जन्नत के बागों में से बाग बना दे। और तीसरी बात, हम अपने उन सिपाहियों के लिए, हर पाकिस्तानी फौजी के लिए, ऑफिसर हो या अदना सा सिपाही हो जो बॉर्डर पर मौजूद है या अपने ऑफिस में है, आज हमारी ज़बान पर उनके लिए दुआ हो कि अल्लाह तबारक व तआला उन सब की हिफाजत फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला उनको हिम्मत दे। अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुल्क की, हमारी फ़ौज की, हर हमारी सिपाही की अल्लाह तबारक व तआला हिफाजत फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल